on certain postulates, certain ideas. So you have to understand that postulate, that ideas, what was the basis of any principle, any theories. Then you have to learn about the explanation of the theories, what the thinkers has explained under his theory or the principle. Then after going through the explanation, you have to critically review that theories, because sometimes the geographers or the contemporary thinkers, or sometimes the thinkers, those who later on read that the new avenues, arena, and inventions we observe, then we compare that theory's relevance. So basically, you have to understand and uh, critically review that theories, and on the basis of that, you have to give your opinion. Okay. So that is the structure for this topic. First, you have to learn the basic postulate or the basis of the principle and the theories. Second, you have to learn the explanation regarding it. And the third, critical review of the theory. So, what would be the structure, as I have said? The topic is theories of population. And under this, the major theories I'm going to discuss is the Malthus ideas, Malthus principle, or theories, of population. Then I will also discuss about the Marx ideas, Marx theories of population. But I will also discuss after Malthus Neo-Malthusian idea. Neo-Malthusian ideas. Okay. Then I will also discuss demographic transition. Various demographer and geographer has given this demographic transition theory. Basically, I will focus on Thompson and Notestein idea. So, but apart from that, I will also discuss the ideas of basic idea of Sadler, Herbert Spencer. Apart from that, various economists also. Malthus was also economist. In economy, you also learn about the Malthus and the Marx. Okay.
You also learn about the demographic transition concept in economy also. ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे. अब क्या होता है, हर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो तो उसमें फोकस थोड़ा चेंज हो जाता है. वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ, सब्सिस्टेंस या हमारा पॉपुलेशन, उससे एसोसिएटेड इश्यूज फोकस एरिया होगा. तो जैसे जैसे सब्जेक्ट, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के बहुत सारे आप चैप्टर जो है ना, ओवरलैपिंग, कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग. तो ज्योग्राफी अगर आपने ठीक से लर्न किया है तो इकोनॉमी को समझने में आसानी होती है. इकोनॉमी अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है तो ज्योग्राफी को भी लर्न करना इजी होता है, स्पेशली द इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट. ओके, सो Ricardo also opined and give the theory of population, but हमें restrict करना है according to syllabus. ठीक है, हर सब्जेक्ट के अपने डोमेन है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन अलाइंड करनी. लेकिन आपको ओवरलैपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स ग्रेजुअली समझना होगा. जैसे जैसे तुम्हारी मैच्योरिटी बढ़ेगी प्रिपरेशन में, वैसे वैसे लिंक भी करना सीखोगे और तब आपके लिए एग्ज़ाम इजी हो जाता है. द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वंस द लिंकेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट, प्रिपरेशन विल बी क्वाइट ईजी. तो लेट्स हैव अ लुक. तो ये तो था कि टॉपिक में क्या डिस्कस करूँगा. फिर टॉपिक में किसी भी थ्योरीज को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं. तो मैंने आपको बताया पहले, तो जो टॉपिक्स है, say for example any topic, if you are learning the Malthusian ideas, if you are learning the Malthusian theories, ठीक है, माल्थस की थ्योरी पढ़ रहे हो तो क्या फोकस करोगे? what should be the focus area? As I have said, first the basic postulates, whatever the subject you have, whether you are learning the theory of physics, gravitational theory, उसमें भी सेम ही प्रिंसिपल अप्लाई होता है. पढ़ाई के लिए स्ट्रक्चर जो होते हैं ना थ्योरीज की, वो ऑलमोस्ट एक ही होती है. वेदर यू लर्न द साइंस, वेदर यू लर्न सोशियोलॉजी और फिलोसफी और एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स, एनी अदर सब्जेक्ट्स, तो बेसिक पॉस्टुलेट आइडियाज़ होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं. थ्योरीज किसी आधार पे ही उन्होंने खुद स्टडी किया होगा ना, कुछ दिमाग में रखा होगा, देन थ्योरिटाइजेशन हुई होगी. फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे थ्योरीज का, बेसिक प्रिंसिपल्स. कॉन्सेप्ट मीन्स एक्सप्लेन करेंगे थ्योरीज का कि थ्योरी में बोला क्या. explanation you need, and after explanation फिर क्या देखोगे? after learning this, critical review. In critical review, you must focus on two different dimensions. One is the positive dimension of the theories, and another is the negative dimension of the theory. Means criticism चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. थ्योरी ने क्या नई बातें सिखाई, कितना रेलेवेंस है ये थ्योरीज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, और क्या बातें जो इरेलेवेंट हैं या जिस पर क्रिटिसिज्म है या डाउट्स है या वो दिखता है कि अप्लाई नहीं हो रहा. तो इसे देखते हैं जब भी आप किसी भी थ्योरीज को लर्न करेंगे इन एनी सब्जेक्ट्स. ओके, एंड अल्टीमेटली on after this critical review you conclude your answer.
Conclusion. So this will be the structure for the entire series. ये सभी के लिए होता है. टाइम पे ज्वाइन किया करो तुम लोग. 20 मिनट बाद आप लोग ज्वाइन कर रहे हो. जब नींद खुली तो उठ गया, देखा, फिर ज्वाइन कर लिया. नहीं. So let's start with the topic. I'm going to introduce the population theories. Now, when you learn about, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी, तो आप देखोगे यू हैव टू लर्न द सब्जेक्ट्स एवोल्यूशन. आपको अब चाहे जो भी ऑप्शनल लेते होंगे या लेंगे, उसमें उस सब्जेक्ट का इवोल्यूशन भी आपको देखना होता है. हाउ द सब्जेक्ट्स ग्रो, बिकॉज इन एवरी सब्जेक्ट देर इज अ हिस्ट्री ऑफ दैट सब्जेक्ट, एंड वी लर्न दैट इन द थॉट sections. Okay, so when you started learning the geography optional, you also learn about how the subject evolve and grow, and when it gained the popularity, when it introduced at university level, when the students at higher level started learning this subject. So geography having also some tumultuous phase, some phase where the geography discarded from the university, lost its popularity, neglected by the people, because people are quite confused whether geography is a science or it is a humanity paper. And during that period of time, there is a challenge in front of the thinkers, those who love this subject, those who are affectionate towards it. जब कोई किसी विषय से आसक्त होता है, से चाहता है, पसंद करता है, उसमें वो वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए वो फेज बहुत बुरा होता है जब उसमें रिसर्च नहीं हो, वर्क नहीं हो, या वो अपनी पॉपुलैरिटी लॉस होता हो, या यूनिवर्सिटी में अगर कोई डिपार्टमेंट क्लोज हो जाए तो आगे के एवेन्यूज बंद हो जाएंगे बच्चों के लिए. हायर एजुकेशन, रिसर्च सब बंद हो जाएगा. और दो तरह की फ्रैटर्निटी है सोसाइटी में. एक नॉलेज गेनिंग सोसाइटी, दूसरा है कि जो मॉनेटरी एस्पेक्ट की तरफ देखता है. तो कुछ लोग हैं कि दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडुकेशन, और वो नए नए चीज़ों के ऊपर सोचते हैं, एंड बेसिकली दे आर फिलोसोफर थिंकर्स ऑफ देयर ओन टाइम. और कुछ लोग प्रोफेशंस यानी कि सब्जेक्ट्स लर्न करते हैं फॉर developing the skills to get some job, to earn the livelihood only. So there are various kinds of people having different objectives. So when geography lost its popularity or started losing its popularity, and there is confusion in the mind, and at the university level it was rejected, then the thinkers during that period of time started observing what was the reason behind this, why the geography is not getting popular. And then they realized that कि geography को भी कुछ इस तरह से डेवलप करना होगा कि लोगों का इंटरेस्ट आए उस फील्ड. तो अलग अलग अप्रोच आने लगे ज्योग्राफी में. वो अप्रोचेस आप पढ़ेंगे बाद में जिनका सब्जेक्ट है. कुछ लोगों ने इसको साइंटिफिक सब्जेक्ट के तौर पे देखा और इसमें वो प्रिंसिपल अप्लाई करने लगे जो विज्ञान में अप्लाई होता है.
मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया ज्योग्राफी में, थ्योरीज डेवलप किए ज्योग्राफी के अंदर। तो जो मॉडल बिल्डिंग और थ्योरिटाइजेशंस होते हैं उसमें मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स भी अप्लाइज होते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे कि हाउ अ थ्योरीज डेवलप, when you learn about the statistical tools which is used for the theoretizations and model building, then you realized कि there is a steps theories लिखने के पहले जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी लर्न करोगे, जब पीएचडी करोगे, तो आपको सिखाया जाएगा कि वर्क कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। देन व्हाट वी रियलाइज दैट अभी वो स्टेप्स यू हैव टू फाइंड आउट and the stages you have to develop actually. So theoretizations takes place. मैंने कहा theory building से start हुआ, and Malthus is one of the pioneer in the field of geography who came up with the new theory. और उसमें से एक बहुत कह सकते हो आप एक फर्स्ट geographers या थिंकर हैं जो कि थ्योरी बिल्डिंग्स में जिनका कंट्रीब्यूशन है। आप बाद में कई थ्योरीज पढ़ेंगे ज्योग्राफी में जिनके अलग अलग हैं, पहले भी मैंने कई थ्योरीज पढ़ा दी हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। अभी आप तो थ्योरिटाइजेशंस जो है मॉडल बिल्डिंग, वो क्या है, पर्पस क्या है उसका, कि रिवाइवल, सब्जेक्ट्स रिवाइवल के समय ये थ्योरी बिल्डिंग और मॉडल बिल्डिंग से स्टार्ट हुआ और फिर से लोगों में पॉपुलैरिटी सब्जेक्ट्स के लिए डेवलप हुई, ठीक है ना। एक नई अप्रोच के साथ ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ और उसमें से ये प्रिमिटिव और पायनियर्स थिंकर्स हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेकर। सो लेट्स बिगिन्स विथ इट। देखें हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है यहाँ कि सिंस द एंशिएंट पीरियड ऑफ प्लेटो, ओके, you might have heard Plato, Aristotle, Socrates. So Socrates, Plato, Aristotle, these are one of the ancient thinkers, and these thinkers having great contribution in different subjects. So these ancient thinkers till the modern and the postmodern one, means आज के भी thinkers जो हैं, they are continuously express the number of views regarding the population and the factors which affect population and the growth of the population. So the population is always be a relevant topic. Population is such a topic which is always be a point of discussion among the geographer, among the scholars, among the thinker, and right from the ancient time till today. Okay, why it is a point of discussion, why it is a subject of discussion, you further realize the relevance of it. Already we had learned several dimensions of population and how it affects the economy, how it affects the society, how the growth of population is linked with the subsistence, you understand. Okay, now when, as I have said, there are a number of opinions. इसका मतलब है एक दो नहीं, कई सारे लोगों ने इसके ऊपर अपने अपने व्यू दिए और हम उनमें से कुछ सिलेक्टिव व्यूज को पढ़ेंगे। ओके, यहाँ फिर मैंने लिखा है कि द वेरियस इंटरप्रिटेशंस एंड थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ have been divided into three broad categories. When you learn entire theories of population, अब अभी तो आपने पढ़ा नहीं है एक भी थ्योरीज, लेकिन जब पढ़ोगे, because the classification is after learning various theories, तो उन थ्योरीज को आप तीन ब्रॉडर हेड्स में क्लब कर सकते हो। ये जो ओपिनियन लिखा हुआ है ये ब्रॉड स्टडी के बाद है। अभी तक जितने भी थ्योरीज हैं, अगर उसे लर्न किया जाए तो वो थ्योरीज जो है आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। वन इज बायोलॉजिकल, अनदर इज कल्चरल, एंड द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक।
Okay, so what I have mentioned that if you learn the interpretations or the ideas expressed by various scholars, demographers, geographers, thinkers, economists, sociologists, anthropologists, then what you realized? It can be classified into three broad categories. Okay, it can be classified into three broad categories. Okay, the one is biological, second is cultural, third is economic. Now, how we can say that one theory is broadly classified under biological concept? What we learn in biology, okay, we learn about the attributes of the livings in biology. Bios means life or the living, and logos means to study. So biology is a branch of science which deals with the study of living. बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट उसको डील करता है. इट मीन्स वी आर लर्निंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिविंग्स, how the living feed, how the living reproduce, how the living respire, okay, how the living locomote, how it coordinated its function. आप सब ये लर्न करते हो in biology. Okay, so what is the biological theories? Let's understand. In population, when you look at कि कुछ population theories जो है वो biological concept पर based है. कैसे? What is the biological theory? Biological theory suggests that the influence on human population growth are essentially the same as those regulating the growth in the number of plants and animals. लिखा है कि the influence on human population growth is same as the growth in the plant and other animals, because human is also a biological entity. Human being is also a living organism. So other living organism जैसे उनमें growth influence होता है, वैसे human में भी होता है. अब पता तो होना चाहिए कि फिर अदर स्पीसीज में ग्रोथ कैसे इन्फ्लुएंस होता है, तभी तो आपको पता भी लगेगा कि अच्छा ऐसा ही ह्यूमन में भी होता है. सो फ्यू थिंकर्स ओपाइंड दैट, कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि जैसा प्लांट में ग्रोथ होता है, जैसा अदर एनिमल में, वैसा ह्यूमन बीइंग में भी पॉपुलेशन ग्रोथ होता है. ठीक है, यानी क्या फैक्टर है? सिमिलर फैक्टर है. अब वो फैक्टर्स हमें समझ में आने चाहिए. ठीक है, it has been argued, for example, that fertility diminishes. The fertility diminishes and is regulated by increasing population density. Now the question is, what I had mentioned that, for example, fertility diminishes and is regulated by increasing population density. Now the question is, what is the meaning of fertility? And the question is, why the fertility diminishes? And regulated by increasing population density. Regulated by increasing population density. अभी मैं explain करूंगा, don't worry. So what the biological theories suggest that the human population growth influenced in a similar manner as the growth of the plant influences, as the growth of other animal influences on this planet Earth. Okay, similar manner. Okay, so let's understand.
सेकेंड कल्चरल थ्योरीज, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, मैं अभी उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले लर्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन. Cultural theories regard demographic growth as unique and emphasize the importance of man's reason. यहां देखो, डेमोग्राफिक ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, ठीक है, as unique and emphasize the importance of man's reason, okay, and intellect. ये क्या कहता है कल्चरल थ्योरीज की, मैंस के रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर और इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. द कल्चरल कॉन्सेप्ट, द कल्चरल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ stated that the growth of population, the demographic growth, depend on the man's reasoning ability as well as intellect in influencing his growth in number. The declining birth rate of the economically advanced nations are seen as evidence of man's ability to control his growth in number. अब आपको सोचना है क्या लिखा है कि एडवांस्ड नेशन में, ठीक है, क्या हो जाता है, तुमने प्रमाण देखे होंगे, एविडेंसेस ऑफ मैन्स एबिलिटी टू कंट्रोल हिज ग्रोथ इन नंबर, ठीक है. वहां डिक्लाइनिंग बर्थ रेट क्यों है? वाई इन जापान देयर इज अ डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट? वाई इन यूके, यूएस और रशिया और जर्मनी देयर इज अ डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट? क्या उसके पीछे ह्यूमन इंटेलेक्ट और रीजनिंग है? देखेंगे अभी, वी विल फाइंड आउट दिस ऑल्सो. थर्ड वन इज इकोनॉमिक थ्योरीज. So few population theory are clubbed under this head, economic theories है. क्या है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन ग्रोथ का? Especially those of Marxist Leninist economists. अब जो मार्क्स हैं या लेनिन्स का आइडिया जो है, अगर उसको देखोगे तो कह रहा है यहाँ पे कि वो ज़्यादातर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है, एंड उसके बेसिस पर ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में पॉपुलेशन थ्योरीज डेवलप है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज. ओके, emphasize the importance of economic factor, notably the demand of labor as being the essential influences on growth rate, patterns of migration and population distribution. बोला कि पॉपुलेशन के ऊपर किस किस चीज़ों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? बोला कि लेबर का, डिमांड फॉर लेबर, ओके, बिकॉज इट इज़ बीइंग एसेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात हो रही है, एज वेल एज द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन विच इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ग्रोथ, एज वेल एज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. Means absolute number of people residing in an area is known as population distribution. Okay, so the thinkers stated that the population theories, when you learn, you can club it on three different heads. One is known as biological theory, which is based on biological concepts. Second is cultural, and third is economic. Now the question is, when you learn about the modern theories, कुछ मॉडर्न थ्योरीज ऐसी हैं उसमें amalgamation of all these three ideas है. उसमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है, इकोनॉमिक और कल्चरल डिमेंशन भी, ठीक है. तो पहले को समझे थोड़ा सा. मैंने बताया बायोलॉजिकल. एज यू नो दैट व्हेन यू लुक एट एज द एजिंग बिगिंस, अभी जब आप पढ़ेंगे व्हेन यू लर्न द बायोलॉजी, साइंस पढ़ोगे, एनसीईआरटी उठाओगे, तो उसमें ह्यूमन ग्रोथ के बारे में भी दिया है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक चैप्टर अलग से, ठीक है ना. We learn the embryology. Embryology is a separate branch in biology. Okay.
और उसमें एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि कैसे एक बच्चा मदर की उम्ब में ग्रो करता है. ओके, when the sperm and ova fertilizes, and how it the zygote forms, and how the zygote divided passes through different stages, and how, okay, uh, embryo develop, and that embryo take birth as a infant, and that infant started growing and passes through the different stages like the child or adolescent or youth, and then aging begins. अब सोचो कि एम्ब्रियोनी के स्टेज से और जीआरटी के स्टेज जब आप एज्ड होंगे, ओल्ड होंगे, तो डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं, है ना. दैट इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एंड एवरी स्पीसीज इज पासिंग थ्रू, बिकॉज दैट इज नोन एज लाइफ साइकिल. उसको बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में हम लाइफ साइकिल कहते हैं. So every species, whether it is plant or whether it is animal, including the human being, having a life cycle. And we passes through that. Okay. So whether anyone, so if we consider the human being, which is one species, okay, how the human being came into existence? The human being came into existence, I am just giving you a opinion. When the sperm and ova fuses, this process is known as fertilization in biology. After this fertilization, one cell is created. This single celled structure is known as zygote. But what is biological difference between this zygote and this single cell? That is, in this single cell, the number of chromosome is half, but in the zygote, the number of chromosome is diploid. आप इंसानों के शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे आपको समझ आएगा. और 23 पेयर्स होते हैं. This 20, the source of this chromosome is a sperm and ova, because in the sperm there is only 23 chromosome. Means half, not 23 pair, 23 only. In ova there are 23 chromosomes, not 23 pairs. These 23 chromosome when merge in this nucleus, you got 46 chromosome. इसको, इस नंबर को 23 को बायोलॉजी में हैप्लॉइड वर्ड यूज करते हैं. हैप्लॉइड, इसके लिए भी बायोलॉजी में जो 23 होते हैं उसके लिए हैप्लॉइड वर्ड यूज होता है. टर्म हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हैप्लॉइड. ये n और n मिल गया, 2n हो गया, यानी 23 और 23 मिल गए, 46 हो गए. इस 46 नंबर को यानी 2n से रिप्रेजेंट करते हो, इसको डिप्लॉयड बोलते हैं. डबल हो गया. तो इंसान का जो शरीर है उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं. हमारे शरीर में ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और हर सेल के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. केवल शरीर में वही एक सेल है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो. अपार्ट फ्रॉम डैट आपके बॉडी के सभी सेल्स में इतने ही क्रोमोसोम होते हैं, 46 2n. एंड दिस जाइगोट व्हेन started implanting in the uterus of the mother,
Okay, the uterus of the mother, this is ovary, this is fallopian tube, this is uterus. So here the zygote implanted. This zygote started growing. We'll all grow in a similar fashion. This zygote has started dividing. This single cell started passing through a stage of cellular division. ये एक सेल पहले 2 सेल में कन्वर्ट होगा, फिर 4 में बनेंगे, ऐसे 8, 32, 64 ऐसे बनते जाएंगे कई सेल्स. अब इसी में से कुछ सेल्स जो है वो अंदर की तरफ ऐसे चलते चले जाएंगे. अलग अलग स्टेजेज होता है. इसके लिए बायोलॉजी में सेपरेट एक ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, जहां पढ़ते हैं. और फाइनली ये जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, ये सब कुछ यहाँ हो रहा है मदर के यूटरस में. और ऐसा फिर क्या होगा कि वन बेबी started growing in the womb of the mother, and later on it passes and came out of womb. Okay, तो जब तक ये इस स्टेज में यहाँ ग्रो कर रहा है, that is earlier when the zygote divided and formed this stage, we called it embryo. ठीक है. बाद में ये जब जन्म लेगा, it is known as infant, and from the infant now the life cycles begins. Now it become a child, as I have said, then it become adolescent, okay, then it become youth, and then old, and the individual died after completing the life cycle. Now what happened? What is the biological concept of population growth? Now the question is कि biologically the human being is when the most agile, most energetic, most powerful. कब होता है? बोला कि जब वो इन्फेंट होता है तो उसमें प्यूबर्टी एज नहीं होती, यानी कुछ ऐसे हार्मोन्स के सिक्रेशन नहीं होते कि वो बच्चा पैदा कर सके. बोला इंसानों में प्यूबर्टी की एज जो होती है, इट अटेंड एज एज ऑफ 12 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 14 ईयर्स इन बॉयज बायोलॉजिकली. यानी द सम हार्मोन्स स्टार्टेड रिलीजिंग फ्रॉम द बॉडी, and now after this age we called it the age of puberty. But I am giving you the idea, because once you won't understand the biological concept, how you can attain the ideas that how the thinkers stated some theories based on biological concept. तो बायोलॉजी थोड़ी समझ तो आनी चाहिए कि शारीरिक परिवर्तन क्या होता है लिविंग्स के अंदर. प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पता है क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. नहीं, फ्लावर्स में आप देखेंगे कि क्या होते हैं. अगर आप देखेंगे वहाँ एंथर होता है और स्टाइल एंड स्टिग्मा, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है. उसके बाद जो ओवरीज है, ठीक है, वो राइपेन होती है, फ्रूट्स बनते हैं. फ्रूट्स के अंदर ओव्यूल होते हैं, सीड होते हैं. फ्रूट अगर फटेगा, डेहिसेंस होंगे, फटेगा तो फिर सीड्स बिखरेंगे, जमीन पे गिरेंगे सॉइल में, फिर उससे प्लांट बनेगा. उनकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती नहीं प्लांट्स में. उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल है. उसी तरह बटरफ्लाई को देखोगे तो इंसेक्ट एग ले करते हैं, एग से लार्वा बना. लार्वा कुछ डोरमेंट स्टेज में कुछ समय के लिए चला जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है आउटसाइड वो सही नहीं होता, तो वो कोकून बना लेते हैं, प्यूपल स्टेज में चले जाते हैं. जैसे रेशम के कीड़े अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेते हैं, सिल्क वर्म जिसे कहते हो, तो वो कोकून जिससे कि सिल्क निकालते हो. कोकून इज अ लाइफ स्टेज. वो लाइफ साइकिल का एक स्टेज है जब वो इंसेक्ट अपने डोरमेंट स्टेज में चला गया.
वो इन्वायरमेंट को अवॉइड करना चाहता है क्योंकि एनवायरमेंट उस समय उसके लिए कॉन्ड्यूसिव नहीं होता, और उसी समय इंसान अपनी ज़रूरत के लिए उस कीड़े को मारकर उस सिल्क निकाल लेता है। अगर वो छोड़ देता इंसान तो वो कीड़ा उसमें से कट करके सिल्क को और रेशे को जो अपने सलाइवा से उसने बनाया था वो निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ मॉथ और द बटरफ्लाई। तो बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक लाइफ साइकिल। मैंने कहा कि मनुष्य जो है, द ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकली, व्हेन ही बिकम अजाइल, व्हेन ही बिकम एनर्जेटिक एंड पावरफुल, व्हेन ही अटेन द पावर ऑफ फर्टिलिटी, he attained the power of fertility at the age of 12 in the girls, he attained the power of fertility in boys in the age of 14, because then and there some hormones started secreting from the biological point of view from the body, but it may fluctuate from individual to individual। किसी को 13 साल में हो सकता है, किसी को 11 साल में भी हो सकता है, but according to the finding in the research, this is the age of puberty। फिर मैंने आपको बताया था कि नॉट इन मेल बट इन फीमेल देयर वाज ए स्टेज व्हेन द फर्टिलिटी द फीमेल स्टार्टेड लूजिंग अगेन ड्यू टू द हार्मोनल चेंज इन बॉडी एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 50 years। this stage is known as menopause, and after the menopause fertility decline। Why the fertility decline? Because certain hormones now not started releasing। डिक्लाइन। तो मैंने पहले बताया था, यहां मैंने बताया था आप लोगों को, अगर गौर से देखेंगे तो लिखा है फर्टिलिटी डिमिनिशेस। फर्टिलिटी डिमिनिशेस आफ्टर सर्टेन एज इन एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर। लाइफ साइकिल में आप एक एज में पहुंचेंगे, ठीक है, एजिलिटी फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती, आदमी जियार्टिक होने लगता है, एज्ड होने लगता है, ठीक है। वाइटल ऑर्गन्स जो है वो काम करना धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, आपकी फिजियोलॉजी वीक होने लगती है, डाइजेशन अफेक्ट होगा, रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा, लोगों की यादाश्त खोने लगती है कई बार, ठीक है। कैसे हो रहा है? एजिंग फैक्टर आप जिसे कहते हैं, उसे लिंक किया। यानी कि कब पॉपुलेशन ग्रोथ किस स्टेज में ज्यादा हो सकता है? ऑफ कोर्स बिटवीन 12 to 50। व्हाट डज इट मीन्स? अगर इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हों सोसाइटी में, उस सोसाइटी में पॉपुलेशन ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। और इस एज तक, क्योंकि दिस इज द एज ग्रुप हैविंग द हाई फर्टिलिटी, फर्टिलिटी स्टार्टेड डिमिनिशिंग बिफोर दिस एज तो होगा ही नहीं फर्टिलिटी, और आफ्टर दिस एज फर्टिलिटी डिमिनिशेस। इसके पहले 12 साल के पहले तो है ही नहीं फर्टिलिटी के लिए कैपेसिटी, और 50 के बाद डिमिनिश होने लगती। दिस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सो सम थिंकर अंडरस्टैंड बायोलॉजी, they understand the life history of various organisms including the human being, how it passes। so it's very obvious questions came into the mind कि अरे क्या फैक्टर है भाई, क्यों ऐसा होने लगता है? बोला एजिंग फैक्टर है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं, कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर एज के साथ। तो मैंने क्या कहा कि इसको अगर समझते हो तो तुम अब बता सकते हो कि अगर किसी सोसाइटी को देख रहे हो और उस सोसाइटी में अगर इस एज ग्रुप के लोग हैं ज्यादा, इसका मतलब है वहां चांसेस है कि फर्टिलिटी हाई होगी और वहां चांसेस है पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होगा। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में इस एज में कम लोग पहुंच पाते हो, मान लो वहां हेल्थ सिनेरियो पुअर हो, वहां खाने की अच्छी सुविधा नहीं हो, और कम लोग अगर इस एज ग्रुप में पहुंच पाएंगे, तो ऑब्वियसली उस सोसाइटी में क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट होगा। जिस सोसाइटी में अब 50 लोग ज्यादा होंगे, वहां फिर क्या होगा? फर्टिलिटी कम होगी। ये तो बहुत
कॉमन सेंसिकल अप्रोच है। कैसे समझ पाओगे? जब बायोलॉजी तुम समझते रहोगे तो ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हो। और ऐसा ही सोचा कई थिंकर्स ने और उसी बेसिस पर उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए। होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द बायोलॉजिकल थ्योरी। समझ आया कुछ हद तक जो मैंने समझाने की कोशिश की? आर यू गेटिंग? यस और नो? तुम ही लोग से पूछ रहा हूँ। Yes, sir. Now let's understand cultural theories. What the cultural theory explain? How the man reasonings and intellect affect the population growth. And I had put here an example: declining birth rate of the economically advanced nation are seen as evidence of man's ability to control his growth in the number. Are you people agreed with this sentence? Yes or no? बताओ। How many of you agreed with this statement? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. The question is, how is in the favor of ye and how is in favor of nay? कितने लोग हैं? सेंटेंस दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर? कैन यू एबल टू रीड दिस स्टेटमेंट? Yes, sir. Favor. Yes, sir. तो बोलो आंसर्स। कितने लोग यस कहते हैं, कितने लोग नो बोलते हैं? अरे बोलने का मतलब है आपको बोलना है यस आई एम इन फेवर, नो आई एम नॉट इन फेवर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. कोई नो है जो बोलने वाला तो सामने आए, बताए मुझे। नहीं है? देन द क्वेश्चन इज कि व्हाई यू आर सेइंग यस? एनीवन कैन एबल टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? कोई है जो यहाँ बता सकता है मुझे कि व्हाई आई एम सेइंग दिस स्टेटमेंट इज राइट? Already you had learned several things regarding population. अब तो बस ओपिनियन पढ़ना है अलग अलग थिंकर्स के, लेकिन ये क्यों यस होगा ये मैं बता चुका हूँ। तो आप बताइए कि क्यों आपने इसका आंसर यस कहा? Why you said yes? जब कोई नेशन इकोनॉमिकली एडवांस होता है तो वहाँ पे लेकर अच्छी थोड़ा होगी तो लाउड बाकी। बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सर अगर कोई नेशन इकोनॉमिकली एडवांस है तो उसके वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होंगी तो बर्थ रेट में डिक्लाइन होगा, तो एक तरीके से वो अपने नंबर्स में कंट्रोल कर रहा है पॉपुलेशन में। तो डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो एक एक रीजन तो ये हो सकता है कि एज्ड पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे तो बर्थ रेट कम हो रहा है। दूसरा फैसिलिटीज अच्छी हैं एज्ड तो वो पॉपुलेशन क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि उन्होंने बर्थ क्योंकि बर्थ कंट्रोल कर रखा है कंट्रोल और कर ये रखा है। क्वेश्चन ये है कि बर्थ क्यों कंट्रोल किया उन्होंने? फिर गुड फैसिलिटीज होने की वजह से उन्होंने एक मतलब चाइल्ड कंट्रोल करना शुरू कर दिया, चाइल्ड पॉपुलेशन को। जैसे हमारे यहाँ लेबर बढ़ाने की मतलब जितने हाथ होंगे उतना काम उतने पैसे आएंगे, ये सोच के पॉपुलेशन कोई कंट्रोल नहीं करना चाहता, या फिर पावर्टी इसका रीजन होता है, मतलब कि वो करा नहीं पाते हैं, फिर हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ट्यूबेक्टोमी और ये वेसेक्टोमी नहीं करा पाते हैं। पर वहाँ पे करा सकते हैं वो लोग, वो चाइल्ड को बर्थ होने ही नहीं देते हैं। मतलब एक चाइल्ड है तो सफिशिएंट है, मतलब उससे ज्यादा नहीं करवाएंगे, तो इसकी वजह से सर बिकॉज वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती है। वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती। ओके, सर सारे लोग रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकें।
सारे लोग रिसोर्स यूटिलाइज कर सकें. ओके, आई एम वेलकमिंग द आइडियाज गिवन बाय यू पीपल. और कुछ लोग जो बता रहे थे, क्या आशीष कह रहा था? आई एम नॉट एबल टू. ये डेवलप्ड नेशन में बेसिकली लोग अपना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते सर. लाइफ स्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता. तो वो ओके, बर्थ रेट को मतलब सर वो और कोई कुछ कहना चाहेगा? सर बर्थ रेट डिक्लाइन होगी तो वो रिसोर्सेज मतलब कम पॉपुलेशन में रिसोर्सेज का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा रहेगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा रहेगा. ओके, सर लिटरेसी होती है तो अवेयरनेस ज्यादा वो लोग फैलाते हैं इन सारी चीजों के लिए. लिटरेसी लिटरेसी होती है रेट और ज्यादा होती है जिसकी वजह से सर इस वजह से वो अवेयरनेस ज्यादा होती है लोगों में. अवेयरनेस किस बात की? सर ड्यूरिंग ग्रोथ रेट, बर्थ रेट. ओके, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है क्या? पार्डन, पॉलिटिकल फैक्टर सर. कौन सा फैक्टर? पॉलिटिकल फैक्टर सर. पॉलिटिकल फैक्टर नहीं, यहाँ वो तो एक, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच रेगुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ, बट यहाँ तो कल्चरल है ना, लिखा है मैंस रीजन एंड इंटेलेक्ट कैसे करता है. मैं ये पूछ रहा था, बर्थ रेट का मेरा क्वेश्चन. हाँ, बर्थ रेट के ऊपर. कम बर्थ रेट एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज से कम बर्थ रेट एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पर भी असर बहुत धीरे धीरे डालेगा. और मतलब जो मेरा इन्वायरमेंट है क्वेश्चन वो आप सब नहीं समझे. मेरा बहुत ज्यादा क्वेश्चन जल्दी ये pollute इसके नहीं होगा. आसपास घूम रहे. नहीं, बहुत सारे लोगों ने वेरी क्लोज ही स्टार्टेड गिविंग अस आंसर. In economically advanced nation, when you observe economically advanced nation, अभी देखोगे इकोनॉमिक एडवांस नेशन में क्या होगा. इकोनॉमिकली एडवांस नेशन जीडीपी इज क्वाइट हाई comparatively, and gradually the people's standard of living is high. Now when the nation which is economically advanced, of course the social infrastructure, health infrastructure is quite good. अगर इकोनॉमिकली साउंड हैं तो वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे हैं. जैसे सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट गुड एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेल. इसका मतलब क्या है, वहाँ हाइजीन भी मेंटेन होगा, हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी होगी, अच्छे एडुकेशंस मिलेंगे लोगों को. एंड एज द मास understanding when generated after getting literacy and education, और फिर आप इकोनॉमिकली एडवांस की बात कर रहे हो तो वहाँ क्या है, मैंने कहा सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होती है. और जैसे जैसे लोग शिक्षित होने लगते हैं तो कई सारी चीज़ें वो समझने लगते हैं. एडुकेटेड पर्सन अंडरस्टैंड वेल the impact of population over the resources. Now they can understand, and they wanted that the means of production must be in the hand of the people. वो means of production जो है उसको अपने पास रखना चाहे. ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करता है. अभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसे लैंड है, लेबर है, ठीक है ना, मनी है, ये जो है, क्योंकि यही प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है. और इसलिए क्या होता है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को सिक्योर करने के लिए उनको पता है कि कम पॉपुलेशन होगा तो ये हमारे हाथों में रहेगा और उससे हमारा ग्रोथ होगा, वेलबींग होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स इन्हांस होगा. और इसीलिए वो अप्लाई करते हैं अपना इंटेलेक्ट और पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं. ठीक है. सो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट द रीजन एंड इंटेलेक्ट हैविंग रोल in the population growth at certain extent. It means that if a society is quite educated, learned and literate,
you find the impact of that learned society, that intellectual society on the population. It reflected. And we observe often in the society globally that the nations, those who are economically well off and their socio-economic infrastructure is quite well, and the people having literacy, okay, they started using their reason, okay, and what you observe, the control of the population, because they understand कि ये बढ़ने लगेगा तो resource is not infinite. The burden over the resources started increasing, and once the burden over the resources started increasing, it may create chaos. So they started controlling population. वो population control शुरू कर देते हैं. तो इकोनॉमिकली डेवलप नेशंस में ऑफन यू फाइंड कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो है. ठीक है. तीसरा फैक्टर था इकोनॉमिक थ्योरीज. किस चीज के ऊपर मैंने कहा था, खास करके मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इकोनॉमिस्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर देते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए ये फैक्टर है. जैसे डिमांड फॉर लेबरर्स. If the demand for laborers increases, the population increases. Demand for labor if increases, the poor started producing much more child. तो ये population के rate को बढ़ा देता है. ठीक है. What are the other factors which influence the growth of population? The pattern of migration. मैंने आपको बताया था कि द एमिग्रेशन होगा, EMIGRATION, फ्रॉम अ एरिया, देन पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. इफ इमिग्रेशन टेक्स प्लेस, पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग. व्हाई इन डिफरेंट डेवलप्ड नेशन द वीजा पॉलिसी और द पॉलिसी ऑफ इमिग्रेशन इज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड टू ब्लॉक द इमिग्रेशन. अब भारतीय वीजा लेना चाहते हैं यूएस का, कितना टफ है. यूके में जाकर आपको जाना हो तो इट्स वेरी टफ. अभी क्या हो रहा है कि ड्यू टू गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम थोड़ा इस चीज़ों को ईज करने की कोशिश करते हैं. बट क्यों द यूरोपियंस, वाई द यूएस हैज इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस. कई सारे देशों के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है. ऐसा क्यों होता है ग्लोबली? क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन है, जहां सारे दुनिया से लोग जाना चाहते हैं. ठीक है. वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, वहाँ सोशियो इकोनॉमिक बेस अच्छा है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो कम है, तो लोग वहाँ जाना चाहते हैं. और वो देश लोगों को आने से रोकने के लिए restrictions impose करते हैं, different kind of restrictions. There is some policy, some laws, legislations are there through which they impose restriction. Why such things you observe in day-to-day life when you read the newspaper? क्योंकि उसके पीछे population growth एक बहुत major factor है और resource linkages बहुत बड़ा factor है. तो मैंने कहा migration भी एक बड़ा issues है जो पॉपुलेशन ग्रोथ करता है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो. ओके. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस भी डिपेंड करता है कि लैंड की क्वालिटी कैसी है, डिपेंड करता है कि टोपोग्राफी कैसा है, फिजिकल एनवायरनमेंट. देयर आर सो मेनी. बट इकोनॉमिक थ्योरीज, सो मैंने क्या कहा कि जब एनालिसिस की गई थ्योरीज अभी तक आपने पढ़ा एक भी नहीं, लेकिन आगे जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ थ्योरीज जो हैं वो बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी उसमें बायोलॉजीज के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो थ्योरी इवॉल्व की गई. कुछ थ्योरीज कल्चरल थ्योरीज हैं, मीन्स उनके ऊपर इम्फेसिस है कि जो मेजर कॉज है किसी पॉपुलेशन कहीं पर ज़्यादा है या ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो वहाँ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट और रीज़न अलग है, और जहाँ पॉपुलेशन रेट कम है वहाँ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट और रीजंस जो है वो अलग है मैंस के अंदर. ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं और उसके आधार पे थ्योरी डिज़ाइन किया.
और कुछ लोग जो है इकोनॉमिक फैक्टर को कंसीडर करते हुए उन्होंने थ्योरीज बिल्ड किया, पॉपुलेशन थ्योरीज। तो ये 3 मेजर तरह की थ्योरीज आपको आगे मिलेंगी। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे थ्योरीज पढ़ोगे या कितनी सारी थ्योरीज पॉपुलेशन से रिलेटेड है। यहाँ मैंने पहला नेम कोट किया है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। 1766 to 1834 was the period of Malthus. Undoubtedly, as I have mentioned, was the first scholar to propound a population theory based on natural laws. अब इनके जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज है, वो प्राकृतिक नियमों पे आधारित हैं, नेचुरल लॉज। क्या है वो नेचुरल लॉज, वो देखेंगे, ठीक है। अदर चीफ नेचुरल लॉ theories propounded during the 19th century included those of Michael Thomas Sadler, Thomas Doubleday, and the Herbert Spencer. बोला कि कुछ और भी थ्योरीज 19th सेंचुरी में आई, वो भी थ्योरीज माल्थस की थ्योरी की तरह नेचुरल लॉज पर ही बेस्ड थी। और उनमें से जो थिंकर्स जो वो थ्योरी को लेकर आए वो है प्रोमिनेंट थिंकर शैडलर, डबलडे एंड हर्बर्ट स्पेंसर। और भी कई सारे हैं, यहाँ मैंने 3 को कोट किया। फिर आई हैड मेंशन्ड दैट द सोशल थ्योरिस्ट ऑन द अदर हैंड इंक्लूडेड हेनरी जॉर्ज, आर्शन जुमॉन्ट, डेविड रिकार्डो एंड कार्ल मार्क्स। अब इकोनॉमिक्स वाले इनको पढ़ेंगे, रिकार्डो को भी, मार्क्स को भी, माल्थस को भी, हर्बर्ट स्पेंसर को भी, ठीक है। अब ये जो थ्योरिस्ट हैं सोशल थ्योरिस्ट हैं, ठीक है। अब देखिए माल्थस, मैंने बताया ही वॉज अ पायनियर in this field. That's why it is in syllabus and a frequently asked question. Malthus opinion principles. क्योंकि मैंने कहा थ्योरी बिल्डिंग और मॉडल बिल्डिंग हुआ तो ज्योग्राफी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि one of the earliest economist and geographer who built a theory. अब इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी वो एक एसे लिखा था, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1798। ये कब पब्लिश हुआ? 1798। ही वाज अ ब्रिटिश, माल्थस वाज अ ब्रिटिश इंग्लिश क्लर्जीमैन। ओके, who thought deeply about economic problems. So he has pretty idea of economy also. So he was economist, clergyman, and best known for his essay on the principle of population. तो आपको ये याद भी रखना होगा, essay on principle of population, and when it was published, the year is important, 1798, for your preliminary paper. आपके ये स्क्रीनिंग एग्जाम में हेल्प करेगा, पीटी में, ये ईयर भी याद रखना चाहिए, 1798, फ्रॉम विच दिस सिलेक्शन इज टेकन। ये जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ोगे वो इसी एसे से लिया गया है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस एसे। इसको जिसने पढ़ा वो समझ पाया कि माल्थस ने अपने आइडियाज कैसे दिए। दिस थ्योरी इज रिटन इन दैट बुक, दैट एसे, which was published in 1798. अब देखो 1798 में एक इंसान कैसे सोचा, ठीक है। तो you get the influence on it, आप उसको देखोगे। And as I have said, when you understand the society, when you understand the economy of that era, when you understand the level of literacy of that period of time, then you can understand how the thinkers are visualizing about the society, about the population growth and all these things.
बचपन में जब आप पढ़ते होंगे एक हिंदी में लेख आता होगा, निबंध आता होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है, आईना है। अभी इस तरह के फिर से ऐसे कुछ ऐसे इधर भी आने लगे हैं सिविल सर्विसेज, लेकिन वो बचपन में कैसे लिखा जाता था। तो साहित्यकार जो होते थे, जैसे लास्ट ईयर ही कवि के बारे में आया था, ठीक है, तो बहुत ऐसे ही चीज़ें लिंक होती। तो जब आप कभी साहित्य पढ़ते होगे, कोई कवि की कविताएं पढ़ोगे या किसी लेखक के गद्य पढ़ोगे, कहानियां पढ़ोगे, तो उसमें उस सोसाइटी के बारे में, जैसे आप कभी गोदान उठा के पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उस सोसाइटी के बारे में बात की गई है कि उस समय की प्रिवेलेंट सोसाइटी कैसी थी, कैसे मनी लेंडर डेट देकर ट्रैप कर लेता था लोगों, कैसे कॉन्ज्यूमरिज्म प्रमोट हो रही थी, कैसे रिसोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। वो लिटरेचर में भी आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप यहाँ भी पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ यू आर बेटर लिंक्ड दैट, एंड यू कैन थिंक दैट डिस्पाइट आवर लर्नेड लिटरेरी ऑथर्स, आप उनके बारे में सोच सकते हैं कि हाउ वेल दे अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, हाउ वेल दे अंडरस्टैंड द सोसाइटी। मीन्स वो सोशोलॉजिस्ट के ओपिनियंस को भी समझते हैं, वो इकोनॉमी को भी समझते हैं, वो लिटरेचर को भी समझते हैं। सो मैंने क्या कहा कि इफ यू अटेन अ मैच्योरिटी, यू कैन लर्न एनी सब्जेक्ट, you can take any optional paper and you can learn any subject. You need maturity. ऐसा नहीं है कि बच्चा बोला कि मैं ये सब्जेक्ट लेके निकल जाऊंगा, आईएएस बन गया, तो वही सब्जेक्ट लेंगे जो यू लर्न एन इंटरव्यू एंड यू ऑब्जर्व कि कोई इस ईयर निकला। वो बच्चा निकला इसलिए क्योंकि वो विषय समझ पाया अच्छे से। आप जिस विषय को अच्छे से समझेंगे उस विषय से निकलेंगे। तो यूपीएससी ने किसी भी विषय को आसान या किसी भी विषय को टफ नहीं बनाया, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप समझ लेते हैं तो आसान है, नहीं समझते तो टफ है आपके लिए। सो अनलाइक मोस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, classical economist, okay, Malthus saw the possibility that the gluts or the depression, okay, could exist and argued that position strongly. बोला अब the Malthus opinion, because he understand well the economy also, and as like other classical and the old economic school of thought को हम classical school of thought बोलते हैं। classical world किसके लिए आता है? old और ancient school of thought के। तो classical economist लिखा है unlike most the classical economist, अगर आप देखेंगे, not like, unlike, Malthus saw the possibility that glut or depression could exist and argued that पोजीशन स्ट्रांगली, कि उन्होंने बताने की कोशिश की कि वाई द इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द ग्लट्स कॉमनली एग्जिस्ट, क्यों इकोनॉमिक डिप्रेशन का स्टेज आता है, क्यों ऐसा फेज आता है, उसके पीछे क्या रीजन है। एंड व्हाट ही सेड दैट द एसेंशियल आर्ग्यूमेंट ऑफ द माल्थस प्रेजेंटेड इन दिस एसे इज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ कैन एंड विल outstrip the food supply. What he stated that he create a link. He create a link between the population growth and the supply of the food. As the population growth increases, the rate of population growth increases. What does it mean? It means demand increases. इकोनॉमी में आप डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हो, एंड इफ द डिमांड इंक्रीजेस तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। बट द माल्थस रियलाइज दैट कि डिमांड जिस रेट से क्रिएट हो रहा है, मीन्स द रेट ऑफ पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, उस रेट से फूड सप्लाई अगर नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा? मिसमैच, डिमांड सप्लाई गैप, and it create depression, it create a glut.
It may create a crisis. So the Malthus was one of the pioneer economists. He was a pioneer demographer and thinker who connect a link, who understand the linkages, and he tried to find out the linkages between the rate of population growth and the supply of food. Okay? And this argument has entered the language with the term Malthusian doctrine. और उसी लिंकेजेस को जिनको उन्होंने क्या कर दिया, पॉपुलेशन से इकोनॉमी को लिंक कर दिया, ठीक है ना, इसको माल्थूजियन डॉक्ट्रिन या माल्थूजियन आइडिया या माल्थूजियन प्रिंसिपल या माल्थूजियन थ्योरी कहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा ये देखो, His approach to the population problem was empirical. अब ये एम्पेरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। माल्थस का जो आइडिया है पॉपुलेशन ग्रोथ का, माल्थस की जो थ्योरी है वो एम्पेरिकल है, वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो फील्ड में जाकर लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट्स देखते हैं कई बार। एक बार रिजल्ट्स आया, आउटपुट आया, फिर से चेक किया क्या सेम आउटपुट आया, क्या सिमिलर, क्या सिमिलर। जब सेवरल टाइम सिमिलर आउटपुट आएगा देन ही write a theories based on experiment, not only observation. But आप कहीं खड़े हैं and continuously you are observing the things, आप अपने अनुभव से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और उस अनुभव के बाद आप लिखते हो। एम्पेरिकल अप्रोच है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। माल्थूजियन आइडिया आपको लिखना होगा when you are writing an optional. Then you can write, and you must write, that Malthusian idea is empirical or approach, means it is based on observation. अब वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने केवल ऑब्जर्वेशन के आधार पे थ्योरी लिखी। ये बुक पब्लिश किया, ये आर्टिकल पब्लिश किया, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब ऑब्जर्वेशन ब्रिटिश क्लर्जीमैन ऑब्जर्वेशन कहाँ का किया होगा? ऑब्वियसली यूरोप का किया होगा, बिकॉज वो यूरोपियन सोसाइटी में रह रहा है। तो समझने वाली बात है ना, तुम जहां रहोगे वहीं ऑब्जर्व करोगे ना। उसके अलावा आपके ऑब्जर्वेशन के सोर्स आज के डेट में क्या होंगे? द न्यूज़पेपर, द जर्नल्स, द मैगजीन, द सोशल मीडियाज। आप इसके बेसिस पे ऑब्जर्व, आप ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो आप न्यूज़ के आधार पे, इंफॉर्मेशन के आधार पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो माल्थस के पास भी जो उस समय के डेटाज, रिकॉर्ड्स, बुक्स अवेलेबल थे उसके आधार पे उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा। लार्जली ऑब्जर्वेशंस, अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं तो मेरे ऑब्जर्वेशन मच बेटर होंगे इंडिया के लिए। ऑब्वियसली अगर मैं किसी डेटा पे रिलाई करता हूं दूसरे जगह के लिए तो वो डेटा कितना रिलायबल है उस पर डिपेंड करेगा मेरा ऑब्जर्वेशन कितना राइट, कितना रॉन्ग होगा। इफ आई एम नॉट एबल टू विजिट यूएस टुडे और मुझे वो यूएस के बारे में कोई ओपिनियन देना है तो मैं कैसे दूंगा? ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सर्टेन रिकॉर्ड्स, डेटा, जर्नल्स, मैगजीन जो पब्लिश कर रहे हैं। अब उसमें ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा कितनी है उस पर डिपेंड करता है मेरे ऑब्जर्वेशन। सो माल्थस जो है उन्होंने जो थ्योरी बिल्ड की, उन्होंने जो ये पब्लिश किया आर्टिकल एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये था ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड। एज द बेस्ट his principle of population on the experience of West European countries। क्या मैंने लिखा है? उन्होंने किस सोसाइटी को ऑब्जर्व किया?
बोला वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप को ऑब्जर्व किया। ही वॉज ए इंग्लिश क्लर्जी मैन। बहुत सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रैम करने की, फैक्ट बेसिक समझ जाओगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब तुमने देखा, मैंने इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया कि ही वॉज अ ब्रिटिश, ठीक है ना। ब्रिटेन इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, इट इज एन आइलैंड कंट्री, ओके, इन अटलांटिक। एडजेसेंट कंट्रीज क्या हैं, तो आप देखोगे फ्रांस एंड पोर्तुगल, ओके, स्पेन, ओके, देन द नीदरलैंड, डेनमार्क, ओके। बेनीलक्स कंट्री आपने सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट बेनीलक्स? ये वर्ड कभी सुना आप लोगों ने? ये है बेल्जियम, ये है नीदरलैंड, ल्यूएमबर्ग, इसको मिलकर बेनीलक्स कहते हैं। वेस्टर्न साइड में ही है यूरोप में, देखना कभी इन देशों को। So he observed the Western Europe, and based on observation he wrote the article, and in this article that is become the base for the theory of population. Okay, hope you can understand. इतना तो समझ आया आप लोगों को? How the Malthus wrote his idea based on the observation of western side of Europe. उन्होंने उस सोसाइटी को लर्न किया, वहाँ की इकोनॉमी देखी, उसको पॉपुलेशन से लिंक किया और उन्होंने थ्योरी डिजाइन किया और अपने ओपिनियन लिखे। अब बेसिक पॉस्टुलेट्स देखो, माल्थस ने एम्फेसिस किन चीजों के ऊपर दिया, क्या बेस लिया, उस किस आधार पे उन्होंने थ्योरी डिजाइन की? postulates taken by Malthus, and that is again important for your screening paper. प्री के लिए भी important है, जीएस के स्टूडेंट को भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। and it is again essential for optional, जिनका है उनको तो पढ़ना ही है anyhow. He assumed two postulates. assumption लेना पड़ता है theory building के लिए। उन्होंने दो assumption लिए। क्या लिया? The food is necessary to the existence of man. मनुष्य के सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, सबसिस्टेंस वर्ड यूज किया था। क्या वर्ड यूज किया था उन्होंने अपने पेपर में? सबसिस्टेंस। आगे मैं यही वर्ड यूज करूंगा। किसके लिए? फूड के लिए। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या वर्ड लिखा था उन्होंने अपने पेपर में, वो तो सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया, ये सबसिस्टेंस वर्ड यूज किया था। सबसिस्टेंस मीन्स फूड। So according to Malthus, what is very very essential for survival of human being, वो क्या assume किया? Food is very very essential for the survival of human being. Without food, a human being cannot survive. The first assumption, first postulate taken by the Malthus in his theory. Second, the passion between the two sexes is necessary and will remain nearly in the present stage. And the second most vital thing according to the Malthus is the passion between the two sexes, male and female. Malthus के according, because he was a clergyman, he was religious also, the clergyman है, तो वो क्या देखते हैं कि इंसानों का जो पैशन है वो सेक्स के प्रति है। द मेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेल, एंड द प्रोक्रिएशन इज द एजेंडा ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अपना जनरेशन आगे बढ़ाना है, तो सेक्स जो है और जनरेशन आगे बढ़ाना इज द डिफरेंट एस्पेक्ट। बट उन्होंने कहा कि उनका सोचना यह है कि इंसान मीन्स द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सेक्स। So as like the food is important, according to the Malthus, sex is also important. यानी संबंध स्थापित करना मेल और फीमेल का, ठीक है ना, ये इनहेरेंट क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू द Malthus। इनके अनुसार
मनुष्य बहुत दिनों तक विदाउट सेक्स नहीं रह सकता. व्हाट द माल्थस बिलीव्स, restraint is quite hard for the human being. Okay, and based on these two assumptions he wrote his ideas, he designed his thought, और उन्होंने उसके आधार पे अपनी पॉपुलेशन थ्योरीज. अब देखो, अब जब आप बेसिक पॉस्टुलेट लेते हैं तो उसमें भी क्रिटिसिज्म छुपा रहता है. अब इन दो आइडियाज जो लिया उसमें भी क्रिटिसिज्म आ जाएगा, वो बाद में रिव्यू करेंगे कि क्या उनका बेसिक पॉस्टुलेट सही है, क्या सभी इंसान विदाउट सेक्स नहीं रह सकता, ठीक है, या सही में द पैशन टुवर्ड्स सेक्स इज द एसेंशियल फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. Now the question is, based on these assumptions, he asserted that the power of population to reproduce is indefinitely greater than the power in the earth to reproduce. Okay? यहाँ से same type हो गया है. Subsistence for man. Power of the earth to reproduce, subsistence for man. What does it mean? Based on these two postulates, अब देखो, food is necessary for the existence of man, and who produced the food? बोला the food is produced by the earth. Earth reproduce the subsistence for man. Who reproduce the food? Earth. बोला क्रॉपिंग कहाँ करते हो? बोला लैंड, भूमि में करते हो. So according to the Malthus, who reproduce? The earth reproduce subsistence for man. ये फूड कौन रिप्रोड्यूस कर रहा है? अर्थ रिप्रोड्यूस कर रहा है. अर्थ इज रिप्रोड्यूसिंग सबसिस्टेंस फॉर मैन. क्या बोला माल्थस ने? अर्थ रिप्रोड्यूस करता है सबसिस्टेंस, आपके लिए भोजन. लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस, द पावर ऑफ पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस is indefinitely greater than the power in the earth to reproduce subsistence for man. इसका मतलब है मैन का जो पावर है, मैन पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, मैन रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या रिप्रोड्यूस करेगा? दूसरा मैन, यानी पॉपुलेशन बढ़ेगा. बोला कि मैन का जो पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अर्थ के पावर ऑफ रिप्रोडक्शन से अधिक है. माल्थस ने क्या कहा? माल्थस ने दो चीजें बताई कि एक तो फूड चाहिए, फूड का रिप्रोडक्शन कौन करता है? बोला अर्थ करता है. दूसरा पैशन बिटवीन द टू सेक्सेस, इसको भी बोला कि दो सेक्सेस हैं पृथ्वी के ऊपर, मेल और फीमेल, चाहे कोई भी स्पीसीज हो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, द पैशन होता है उनका सेक्स के लिए, और ये पैशन इतना स्ट्रांग है कि जो मैन का रिप्रोडक्शन एबिलिटी है वो अर्थ के रिप्रोडक्शन एबिलिटी से कहीं ज्यादा है. यानी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द पॉपुलेशन और द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फार फार मोर देन द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फूड. What the Malthusian ideas is based on these two postulates. तो माल्थस का कहना है मैंस का जो रिप्रोडक्शन का जो एबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है अर्थ की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी से. अब देखो, इन हिज ओरिजिनल बुक which was published in 1798, Essay on the Principle of Population, what he wrote, he suggested that, और ये बार बार पीटी में आता है, population has tendency to increase in geometric ratio if unchecked. बोला मनुष्य का जो पॉपुलेशन है, मानव का जो जनसंख्या है, वो जियोमेट्रिक रेट से बढ़ता है. यानी जियोमेट्रिक रेट का मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रोपोर्शन में बढ़ता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है.
1 से 2, 2 से 3 नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से सीधा 8, 8 से सीधा 16, 16 से डायरेक्ट 32, 32, इस प्रोग्रेशन में बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन while the subsistence means food production, he used the word subsistence, for the food production tend to increase in an arithmetic ratio, और ये लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। arithmetic ratio means 1 2 3 4 5 6। तो माल्थस का क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या मानना है कि अर्थ की जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है वो कम है, मैन्स की रिप्रोडक्शन एबिलिटी अधिक है। मैन का जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। लेकिन जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है, लैंड की चूंकि रिप्रोडक्शन एबिलिटी कम होती है, तो फूड प्रोडक्शन जो होता है वो 1 2 3 4 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो शुरुआत तो दोनों की, अगर मैन एक कपल है वो रिप्रोड्यूस करना शुरू किया कुछ सालों के बाद, अगर किसी एरिया में, ठीक है ना, द पीपल दोज हु आर लिविंग इन दिस एरिया से 1000, और 10 साल के बाद अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ देखेंगे, वो 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगा, 1 2 4 8 16 ऐसे होगा। लेकिन उसी 10 साल में ये जो लैंड है यहाँ पर, वो जो प्रोडक्शन करेगा फूड का 1 2 3 4 होगा। तो कुछ सालों के बाद जब 1 से ये 2 और 2 से 4 होंगे, तो यहाँ पर पॉपुलेशन 1 से 2, 2 से 3 होगा, 4 से जब ये 8 पहुंचेगा तो 3 से ये 4 ही पहुंचेगा। ये मिसमैच, ये गैप क्रिएट हो जाएगी बिटवीन द पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस। दैट इज द सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, दैट इज द फूड। So according to Malthus, why there is a gap between the food production and the population is because of the man's passion towards sex, and the food is very essential item, but the food production by the earth is less. Food is growing with arithmetic rate while the population is growing with geometric rate. That's why there is a mismatch, there is a gap. अब क्या करना है, अगर फूड प्रोडक्शन को मैन के अकॉर्डिंग रखना है तो क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन रेट को स्लो करना होगा। और वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पैशन अबाउट सेक्स बोला उन्होंने, बहुत स्ट्रांग है मैन के अंदर। तो फिर कैसे कंट्रोल हो सकता है? तो क्या कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी कुछ कहा माल्थस ने या नहीं कहा? क्या थ्योरीज तुम्हें समझ में आई, बेसिक पोस्टुलेट क्लियर हुआ और ये समझ आया इतनी बातें जो मैंने अभी तक समझाई आपको? यस और नो? यस। So Malthus considered the unit of time in which a population could double. इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि एक रीजन का पॉपुलेशन अगर 1000 है तो ये डबल कब हो जाएगा, कितने समय में। ठीक है, इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया अगर वो अनचेक्ड पॉपुलेशन, अगर तुम कंट्रोल नहीं करते हो, इफ इट वर इम्पीडेड बाय अ लैक ऑफ सब्सिस्टेंस, तो बोला ये 25 साल में डबल हो जाएगा। क्या बोला कि किसी भी जगह का पॉपुलेशन 25 ईयर में डबल हो जाएगा अगर वो पॉपुलेशन अनचेक्ड रहा, यानी कोई फोर्सेस अगर उसको नहीं रोकती हैं, तो 25 ईयर में उस जगह का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। अब ये 25 ईयर में कैसे कैलकुलेट किया? यहां हम लोग क्रिटिकल रिव्यू में देखेंगे इस क्वेश्चन। इफ दिस रेशियो एंड्यूर्ड, और ये कंटिन्यू रहा, द पॉपुलेशन वुड इंक्रीज बाय 256 टाइम्स of its original size in 2 centuries. This is quarter of century, डबल हो रहा है। अगर सेम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रहा मैंस का, तो कितना टाइम्स पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगा 2 सेंचुरी के अंदर, 200 साल में? बोला कि 256 टाइम ग्रो कर जाएगा। माल्थस ने क्या कहा
अगर पॉपुलेशन को चेक नहीं किया जाता, अनचेक्ड पॉपुलेशन है, 25 साल में डबल और 200 सालों में यानी 2 सेंचुरी के अंदर वो 256 टाइम हो जाएगा। अब देखो कितना फास्ट रेट। और इसी 200 सालों में जो फूड होगा, फूड का ग्रोथ वो केवल 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा। फूड मीन्स सबसिस्टेंस। What the Malthus emphasized that after 2 century the food production 9 टाइम इंक्रीज करेगा। 2 सेंचुरी के बाद अगर पॉपुलेशन अनचेक्ड रहा 256 टाइम बढ़ जाए। तो क्या तुम देखोगे, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। Who explained it? Malthus. Where he explained is in original book when it was published in 1798. So this idea was not the recent ideas. 18th century के latter half में ये book publish हुआ, उस समय ये thinker सोचते हैं। And in this supposition, no limits whatever are placed to the production of the earth. Limit नहीं लगाया गया production. It may increase forever and be greater than any assignable quantity, yet still the power of population being in every period so much greater, the increase of human species can only be kept down to the level of means of subsistence by the constant operation of a strong law of necessity acting as a check upon the greater power. What does it mean? ये पैराग्राफ क्या कहता है? बोला कि फूड का प्रोडक्शन भी अनचेक्ड है, तब वो 9 टाइम बढ़ रहा है 200 सालों में। पॉपुलेशन 256 टाइम। अगर आपको पॉपुलेशन को सबसिस्टेंस लेवल के क्लोज रखना है तो क्या करना होगा? चेक करना होगा। यू नीड अ चेक टू द ग्रेटर पावर। ग्रेटर पावर क्या है? द रिप्रोडक्शन बाय द मैन इज अ ग्रेटर पावर। उसको चेक करना पड़ेगा। उसको जब तक रोकेंगे नहीं तब तक पॉपुलेशन ग्रो होता ही जाएगा। तो कैसे उस ग्रेटर पावर को, कैसे मैन्स की रिप्रोडक्शन एबिलिटी को, दैट इज अ नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। द माल्थुसियन आइडिया इज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज, एज आई हैव सेड। The earth reproduces the subsistence, the man reproduces the man. This is the natural law. And the man's reproduction ability is quite stronger than the Mother Earth's reproducing ability. What the Malthusian idea is. And if the man wanted the close to the subsistence, then the man's ability to reproduce has to check. कॉन्स्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शंस को लो करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली चेक अप्लाई करना होगा। अब बोला वो चेक वर्ड यूज किया। क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं? चेक। उन्होंने अपनी थ्योरी में वो वर्ड यूज किया, चेक। अब है कि जब तुम देखोगे कि क्या टाइप का चेक, कैसे वो चेक करेंगे, उन्होंने 2 चेक की बात की। ही टॉक अबाउट द चेक्स and he talk about the 2 type of checks. One is known as preventive, another is known as positive. अब देखो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन कैसे होगा? बोला 2 कारणों से होगा। उसके लिए वर्ड यूज किया उन्होंने, चेक। कौन कौन से चेक अप्लाई करेंगे? एंड यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज अगेन इट इज आस्क्ड, इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जाम। ये प्री के लिए फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं जब सेग्रीगेट करता हूँ प्री मेंस तो उसको समझ लेना चाहिए, कहीं नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू रिवाइजिंग यू आर नॉट गेटिंग द आइडिया प्री में क्या पूछता है मेंस में, इसलिए बताते चलता हूँ कि प्री में ये फोकस करना है व्हेन यू आर स्टार्टेड रिवाइजिंग फॉर प्री। स्पेशली रिवीजन कब होता है? मई में एग्जाम देने जाते हो तो प्री स्पेसिफिक तैयारी जनवरी से शुरू करते हैं।
January, February, March, April, then we are able to appear in the May month. उसके पहले मेंस की तैयारी चलती रहती है, बट फोकस शिफ्ट हो जाता है प्री के पहले। मैंने क्या कहा कि प्रिवेंटिव और पॉजिटिव। अब प्रिवेंटिव चेक क्या है अकॉर्डिंग टू माल्थस का प्रिवेंटिव चेक क्या है? उसी को प्रूडेंशियल चेक भी कहते हैं। प्रिवेंटिव चेक इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंशियल चेक। व्हाट इज द आइडिया ऑफ माल्थस? दिस प्रिवेंटिव check or the prudential check peculiar to man arises from his reasoning faculties. कल्चरल एस्पेक्ट आ गया, रीजनिंग से, आपके रीजन से अपीयर होता है, आपके थॉट प्रोसेस से, which enable him to calculate distant consequences of population. जब इंसान सोचने लगता है दूर तक कि क्या प्रभाव पड़ सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, जब वो रीजन अप्लाई करने लगता है, तर्क, तब प्रिवेंटिव चेक्स अप्लाई होते हैं। बोला क्या है प्रिवेंटिव चेक? अकॉर्डिंग टू द माल्थस, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज इज अ प्रिवेंटिव चेक। क्या करेगा? डिलेड मैरिज। इंसान ने देखा कि पॉपुलेशन, बिकॉज पैशन टुवर्ड्स सेक्स ही कैन नॉट नेग्लेक्ट, ठीक है, क्या कर सकता है? ऐसा नहीं कि मैरिज नहीं करेगा, डिलेड मैरिज अकॉर्डिंग टू माल्थस, दैट इज प्रिवेंटिव चेक। थोड़ा पोस्टपोन्ड कर दिया। अब तुम देखोगे ग्रेजुअली, व्हेन यू कंपेयर योर प्रिमिटिव सोसाइटी, when you compare the pre-modern society or even the early modern society, what you find? The getting age or the marriageable age is less. आप जब इंडिया का भी फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ोगे, एक चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, द फेज ऑफ रेनेशा कहते हैं जिसे, उसमें कई थिंकर आएंगे जो चाइल्ड मैरिजेस के प्रोहिबिशन की बात करेंगे। इंडिया में धीरे धीरे लॉ ट्रांसफॉर्म होंगे। इवन इंडिपेंडेंट इंडियाज में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाएगी, जब आईपीसीज बनेंगे, अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे लॉज में, पेनल कोड्स में चेंजेस की सरकार ने अभी रिसेंटली, 2 days बैक, तो लेजिस्लेशन किए गए, तो उसमें भी मैरिज की एज निर्धारित की गई। तो जितने भी मॉडर्न सोसाइटी हैं वो मैरिज एज को क्यों निर्धारित करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि हेल्थ के सिनेरियो से, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के सिनेरियो से क्या मैरिजेबल एज होना चाहिए। दोनों बातें, हेल्थ सिनेरियो भी इंडिविजुअल्स की देखी जाती है कि उसका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ हो चुका है कि नहीं, कि वो आगे चलकर अपनी फैमिली लाइफ को लीड कर सके, अपने बायोलॉजिकल, ठीक है ना, एंटिटीज को प्रोक्रिएट कर सके। वो सारी चीज़ें देखते हुए लॉज बनाए जाते हैं। लॉज बनाने के पीछे एक वाइडर ऑब्जेक्टिव होता है, इंटेंट ऑफ द लॉज आपको समझना होगा। यहाँ पर माल्थस ने क्या कहा? एक तरीका क्या है चेक करने का, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को स्लो करने का, वो है डिलेड मैरिज। और ये मनुष्य के इंटेलेक्ट और रीजन पे डिपेंड करता है, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इफ देयर इज अ लैक ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीजन, द मैन कैन नॉट अप्लाई दिस रेस्ट्रेन, वो नहीं कर सकता है, ठीक है। सो वन काइंड ऑफ प्रिवेंटिव चेक, आपको एग्जांपल याद रखना होगा, व्हाट कम्स अंडर प्रिवेंटिव चेक, क्योंकि प्री में पूछेगा या पूछ चुका है व्हेन यू फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Was and would continue to be the chief preventive check. According to Malthus, what is the chief preventive check? Postponement of the marriage or delayed marriage. 5 years later, अपने ओरिजिनल बुक लिखने के 5 साल बाद, the Malthus faced several criticism. The Malthus argued at several places about his theories. And his theory is one of the pioneer, attracted so many person, but contemporary thinker also criticizes. Malthus ने 5 साल बाद कुछ बदलाव भी किए अपने
he revised and modified his theory. His mathematical progression, उन्होंने बताया था ना कि ज्योमेट्रिक रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगा और अरिथमेटिक रेट से फूड बढ़ेगा, उसी रेट से बढ़ता है। ये मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को इन्होंने मॉडिफाई की, वर गिवन लेस एम्फेसिस बाय द माल्थस 5 ईयर के बाद। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप ऐसे कैसे कह पा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो नॉट अबंडेंट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को छोड़ दिया, कम एम्फेसिस दिया। जब जाते थे लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि हाउ यू कैलकुलेटेड ऑल दिस, और लोग, अभी मैं बताऊंगा क्रिटिसिज्म में कि ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड मोर प्रोमिनेंस गिवन टू द मोरल रेस्ट्रेन। अब देखो 5 साल बाद जब उन्होंने अपनी थ्योरी रिवाइज की, उसमें मैंने क्या कहा, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के ऊपर कम एम्फेसिस दिया और उन्होंने एम्फेसिस दिया पॉजिटिव चेक के अंदर मोरल रेस्ट्रेन। क्या वर्ड यूज किया? मोरल रेस्ट्रेन। बोला व्हाट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द मैन एसेंशियल फीचर एज अदर स्पीसीज इज पैशन टुवर्ड्स सेक्स, हाउ ही कैन कंट्रोल हिज पैशन। बोला नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रोके अपने आप। बोला मोरल रेस्ट्रेन इज एसेंशियल, क्योंकि देख रहा है वो कॉन्सिक्वेंसेस की उसके बैड होंगे सोसाइटी में, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है इंसान की कि वो कंट्रोल करे। सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द माल्थस द सेकंड प्रिवेंटिव चेक इज अ मोरल रेस्ट्रेन। वन प्रिवेंटिव चेक इज डिलेड मैरिजेस। तो अभी तक मैंने 2 प्रिवेंटिव चेक बताए, एक पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, डिलेड मैरिज, सेकंड द मोरल रेस्ट्रेन। And third, what he said that, what is the moral restraint? And he also emphasized controlled frequency of sex after marriages. Controlled frequency, the number of sex with the partner should be less to control the population. The Malthus was a clergyman of Britain. ओके अभी आपको बताया ना, कई रिलीजन में सोचते हैं कि बच्चे भगवान की देन है, ठीक है। एंड व्हाट यू शुड कीप इन माइंड, द माल्थस आइडिया पैशन टुवर्ड्स सेक्स। बोला इंसान रोक नहीं पाता है, तो क्या करना चाहिए? अनदर प्रिवेंटिव चेक कैसे कंट्रोल कर सकता है? टू लेसन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स विद द पार्टनर। दिस इज अनदर प्रिवेंटिव चेक सजेस्टेड बाय द माल्थस इन हिज थ्योरी। Okay, these are some preventive checks. अगर ये लेता है इंसान मेजर्स, तो क्या कर सकता है? वो पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक कर सकता है और फूड डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को रिड्यूस कर सकता है, सब्सिस्टेंस लेवल को बैलेंस कर सकता है। ये तो थे प्रिवेंटिव चेक। अब क्या है पॉजिटिव चेक? जबकि प्रिवेंटिव चेक को उसने कम एम्फेसिस दिया, पॉजिटिव चेक को ज्यादा एम्फेसिस दिया। अब पॉजिटिव चेक को पढ़ें जिसे माल्थस ने ज्यादा एम्फेसिस किया, और आज मैं यहीं अपने लेक्चर को रोकूंगा, फिर कल करेंगे इसे। व्हाट इज द पॉजिटिव चेक सजेस्टेड बाय द माल्थस टू कंट्रोल द पॉपुलेशन? According to Malthus, positive check to population are extremely various, included every causes which, whether arising from the vice or misery. Now, what is the vice and what is misery? Which develop from the vice and misery. Try to understand. Which in any degree contribute to the shorten the natural duration of human life. अब देखो, ये जो वाइस और मिजरी है, ये क्या करता है? इंसानों की नेचुरल ड्यूरेशन जो ह्यूमन लाइफ की है, अगर 100 साल जिंदा रहना है तो ये कम कर देता है। द पॉजिटिव चेक लेसन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, और ये ह्यूमन लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करने देता, उसके पहले इंसान की डेथ हो जाएगी।
बोला वो है क्या? बोला उनके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें। Under this head may enumerated all wholesome occupations, severe labor, exposure to the season, extreme poverty, bad nourishing of children, great towns, excess of all kind, the whole train of common diseases, war, plague and famines. उन्होंने कहा कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है, सप्लाई डिमांड मिसमैच होती है, वॉर इज इनएविटेबल, और वॉर जब होते हैं पॉपुलेशन अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता, कई लोगों की डेथ होती है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में देख 100,000 ऑफ आर्मी पर्सनल killed by the opposite parties. So what he said that what is positive check war, what is positive check drought, what is positive check famine, what is positive check the epidemics, the pandemics, these are positive check. Nature खुद बैलेंस करने की कोशिश कर, इनएविटेबल है अकॉर्डिंग टू माल्थस, ये होगा ही। उन्होंने कहा बीमारियां फैलती हैं, महामारियां, एपिडेमिक्स, कॉलेरा से गांव के गांव खत्म हो जाते थे, स्मॉल पॉक्स से। माल्थस ने वो देखा था, वो देख रहे थे, अपनी प्रेजेंट सोसाइटी को कंसीडर करते हुए वेस्टर्न सोसाइटी ऑब्जर्व किया कि जब प्लेग आता है तो गांव के गांव समाप्त हो जाते हैं, जब हैजा होता है कॉलेरा तो गांव के गांव इंड हो जाते हैं। द नो बॉडी इज एबल टू रेस्ट्रेन दैट, कंट्रोल इट। दिस इज द पॉजिटिव चेक, दिस चेक कंट्रोल द पॉपुलेशन। So according to Malthus, there are only two means through which the population can be checked. One is preventive, another is positive. What is preventive checks? The delayed marriages, the moral restraints, the number of frequency of the sex should be reduced. ये preventive है, उसको prudential check भी कहा माल्थस ने अपने सीरीज में। और व्हाट इज पॉजिटिव? बोला वॉर, फेमीन, ड्राउट, डिजीजेस, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स एक्सेट्रा, दिस आर द पॉजिटिव चेक। अब इसको पढ़ लिया, इसको जान लिया, तो आगे अब कल मैं डिस्कस करूंगा क्रिटिकल रिव्यू ऑफ माल्थुसियन आइडिया कि क्या माल्थस का जो ये कहना, हाँ वाइस एक वर्ड यूज किया। उन्होंने कहा कि मिजरी के कारण लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती है, अदरवाइज वाइस। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि समटाइम्स द वाइस मे बी अ आइडिया, व्हाट इज द वाइस? उन्होंने ये भी बात की एम्फेसिस की, बिकॉज द पैशन टुवर्ड्स सेक्स वन कैन नॉट स्टॉप इट, इट मे बी डिलेड फॉर सम टाइम्स। उन्होंने कहा कि बेटर है कि आप पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करें, आप प्रोस्टिट्यूट के यहाँ चले जाओ टू फुलफिल योर डिजायर टुवर्ड्स द सेक्स, पैशन टुवर्ड्स सेक्स, क्योंकि आपको वहाँ खतरा होगा कि सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीजेज ना आपके बच्चे के अंदर हो जाएं, तो आप बच्चा नहीं पैदा करेंगे बट आपकी अपनी सेक्स की नीड पूरा कर ले। तो ही ऑल्सो सजेस्टेड अबाउट द वाइस। द माल्थस वाज क्रिटिसाइजेस ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। तो उन्होंने कई मामले में प्रोस्टिट्यूशन को परमिट भी किया, क्योंकि इंसान अपनी इस पैशन को रोक नहीं सकता है। तो हिज ओपिनियन इन दैट पीरियड ऑफ टाइम इज क्वाइट रिवोल्यूशनरी। एक इस तरह से आइडिया देना, जबकि सोसाइटी इतनी रिलीजियस है और उस समय की सोसाइटी इतनी ओपन माइंडेड और ऑर्थोडॉक्स नहीं है, अरे सॉरी ओपन माइंडेड नहीं है, ऑर्थोडॉक्स है, और ऐसे में किसी व्यक्ति का इस तरह से बात करना तो ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। फ्यू पीपल क्रिटिसाइजेस दिस आइडियाज। और पता है कि माल्थस ने यहाँ कहीं पे भी टेक्नोलॉजीज की बात नहीं की, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात नहीं की। पता है जब माल्थस की ये थ्योरी आई तो उस समय फ्रांस में द पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, but Malthus never said that a person can delayed
or the can reduce the production by using contraceptives also. जैसे आज फैमिली प्लानिंग में देश में अवेयरनेस फैला रही है सरकार। तो क्रिटिकल रिव्यू में पढ़ोगे कि क्या आइडियाज जो माल्थस ने दिया उसका क्रिटिसिज्म किया गया उस समय के लोगों के द्वारा या मॉडर्न टाइम पीरियड में, कितनी बातें रेलेवेंट हैं, कितनी इरेलेवेंट हैं, कहाँ एम्बिग्यूटी है। ठीक है, तो कल मैं डिस्कस करूँगा एंड टुमारो आई विल फिनिश ऑल द टॉपिक बिकॉज ये थ्योरीज ज़्यादा बड़ी है इसलिए इसमें टाइम लगता है। रेस्ट ऑफ द थ्योरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल फिनिश दिस टॉपिक। कल बंद होगा, इंडिपेंडेंस डे मनाइए 15 अगस्त, 16 को करेंगे बिकॉज कल नेशनल हॉलीडे है एंड वी शुड सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। तो चलो फिर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वी विल मीट टुमारो आफ्टर डे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, so have a nice time. Thank you. Thank you, sir.